Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Today we will go for lecture number 6 and that is about Gales-Travers table. In previous lecture we have seen that how we can use the latitude and departure calculation to find out the length and bearing of any line whose observation is unknown from the field. So by making the equation, that is sum of the latitude is equal to 0 and sum of the departure is equal to 0, we can find out the length and bearing of the any line which is missed or it is not possible from the field observation. So here again this type of traversing is again required, and the purpose of all this is to plot the map. So we have to plot the plan of a particular area, or we have to plot the whatever the situation there in the field. तो हमको इस प्रकार से यदि बड़े एरिया के लिए ट्रैवर्सिंग करना है, तो किसी बिल्डिंग को कवर करना है तो बिल्डिंग के अराउंड में हमको ट्रैवर्स लेना पड़ेगा, या किसी तालाब का आपको प्लान बनाना है तो तालाब के अराउंड आपको नंबर ऑफ लाइंस लेके एक बड़ा ट्रैवर्स लेना पड़ेगा. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द prepare the plan or top view of the dam site or like way. So we can have a larger size traverse. Now in this larger size traverse there are number of lines are there, and here we are taking the observation by using theodolite. So we are observing the length of the line. So there also you can use the concept of tachometry for finding the distance by using the theodolite, or you can also measure the length of the line. Then similarly you can measure the bearing of the line by using the theodolite also. So you can more accurately measure the bearing of the survey line in degree, minute and second. So once the bearing is calculated, then also we can measure the included angle. So we have seen that horizontal angle measurement by repetition method. So one angle we can accurately measure by using this method. So we can also measure the included angle. And now with this data, so for any traverse, for each line we are having length, bearing and station. For particular station we are having angle. So with this we can accurately plot the traverse, and our aim is that there should not be any closing error फॉर ए लार्जर साइज ट्रैवर्स. जितना बड़ा ट्रैवर्स होगा तो लेंथ के अंदर एरर आने के वजह से, लेंथ मेजरमेंट में एरर आने की वजह से, या बेरिंग का मेजरमेंट में एरर आने की वजह से, या इंक्लूडेड एंगल गलत होने की वजह से, इस प्रकार से अलग अलग रीजन से एरर आ सकती है. और जब वो जो फील्ड का डाटा है जब हम लोग ड्राइंग शीट में प्लॉट करेंगे तो हमारा ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो पाता है कभी कभी. सो टू अवॉइड दिस द सिंपलेस्ट वे इज टू कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशन. तो क्लोजिंग एरर के बजाय या लेंथ और बेयरिंग प्लॉट करने के बजाय हम लोग एक सिस्टमैटिक कैलकुलेशन करके हर एक स्टेशन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते. सो इफ वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट देन द एवरी स्टेशन पॉइंट इज एट द फिक्स लोकेशन, और वो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके आपका ट्रैवर्स तैयार हो जाएगा. सो दैट इज द कंसेप्ट, एंड फॉर दैट we are using Gales-Travers table for making the calculation of for this traverse. So that we will understand in this lecture. So before going to that, we can also solve some of the problem. So that first we will understand now what is exactly the Gales-Travers table. So it is having number of columns are there. So one by one we will understand what are the different columns are there. So first column is here the instrument station. मीन्स जहाँ पे हम लोग थियोडोलाइट रखने वाले हैं वो स्टेशन. फॉर एग्जांपल हमारे 4 स्टेशन है तो 4 सर्वे लाइन आएगी हमारी, और 4 सर्वे लाइन के हिसाब से 4 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रहेंगे. यानी थियोडोलाइट आपने कहाँ कहाँ रखा 1 2 3 4, और यू कैन कॉल इट एज ए स्टेशन पॉइंट. सो स्टेशन पॉइंट इज ए बी सी एंड डी. सो सेकंड कॉलम इज स्टेशन. थर्ड कॉलम है हमारा एंगल, यानी स्टेशन ए पॉइंट पे 2 लाइन आ रही है, एक ए बी आएगी और एक दूसरी कोई भी आएगी, ई ए आएगी फॉर एग्जाम्पल. तो वो इंक्लूडेड एंगल कितना है, वो एंगल भी हम लोग थियोडोलाइट से एक्यूरेटली गिन सकते हैं.
सो दैट एंगल वी कैन राइट डाउन हियर. सो एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, एंगल डी कितना है. सो चारों एंगल हम लोग लिख सकते हैं. सो रिमेंबर हियर इन दिस गेल्स-टावर्स टेबल ऑलवेज वी यूज 2 रो फॉर 1 लाइन. एक सिंगल लाइन के लिए 2 रो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर स्टेशन और यहाँ पर लिख रहे हैं लाइन. सो देयरफॉर 4 पॉइंट है तो 8 रो रहेंगी मेरी यहाँ पर. दैट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट. फिर उसके बाद का कॉलम है हमारा करेक्शन. अब हमने इंक्लूडेड एंगल यदि यहाँ पर इनपुट कर दिए तो ये इंक्लूडेड एंगल एक्यूरेट है कि नहीं हमको चेक करना पड़ेगा. सो 2n-4 into 90 दैट चेक वी कैन अप्लाई. सो दैट फॉर दैट यदि एरर है सो यू हैव टू अप्लाई द करेक्शन. अब ये करेक्शन यदि अप्लाई करेंगे तो फिर एंगल आपका करेक्टेड निकलेगा. सो नेक्स्ट कॉलम इज करेक्टेड एंगल, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा. तो इंक्लूडेड एंगल लिख के उसके करेक्शन फाइंड करके करेक्टेड एंगल हमने निकाल लिया. तो ये हो गया स्टेशन का काम हमारा हो गया पहले. अब हमारी इंफॉर्मेशन आ गई, ए से लाइन है हमारी ए बी. सो ए बी लाइन के लिए लेंथ कितनी मेजर किया आपने, तो वो आप लिख दो यहाँ पर लेंथ. सो व्हाट इज द लेंथ. तो यहाँ पे ए स्टेशन के लिए एंगल आ गया, उसका करेक्शन आ गया, करेक्टेड एंगल आ गया. फिर उसके आगे ए बी के लिए लेंथ आ गई, फिर उसका बेयरिंग भी हम लोग गिनने वाले हैं वहाँ पे. सो दिस बेयरिंग ऑल्सो वी हैव टू मेजर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट. सो दैट बेयरिंग वी विल राइट डाउन हियर होल सर्कल बेयरिंग. अब ये बेयरिंग से पता चलेगा कि आपकी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट डाउन द रिड्यूस बेयरिंग फॉर्मेट. कौन से क्वाड्रेंट में वो लिख लो यहाँ पे. साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है. सो दैट रिड्यूस बेयरिंग यू हैव टू राइट डाउन हियर. दैट इज थीटा. दिस रिड्यूस बेयरिंग इज थीटा. दैट इज द बेयरिंग ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Then we have to write down the quadrant. So in which quadrant, that is 1, 2, 3, 4 like this. अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक का जो पार्ट है, ये है हमारा फील्ड ऑब्जर्वेशन. यहाँ से यहाँ तक का ये हमको एंगल, लेंथ और बेयरिंग ये फील्ड में से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम लोग. सो दिस इज पार्ट 1. और फिर पार्ट 2 जो है हमको कैलकुलेशन वाला पार्ट है. अब पार्ट 2 में क्या करना है, तो हमको कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालना है. कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट का मतलब है L, D, लैटिट्यूड, डिपार्चर. तो लैटिट्यूड बोले तो नॉर्थ साउथ कंपोनेंट, डिपार्चर बोले तो ईस्ट वेस्ट कंपोनेंट. तो लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने के लिए हमको यहाँ पर 2 कॉलम का इस्तेमाल चाहिए वैसा. एंड लैटिट्यूड के लिए 1 कॉलम, डिपार्चर के लिए और 1 कॉलम. लेकिन लैटिट्यूड में भी क्या होगा कि कुछ लैटिट्यूड नॉर्थिंग वाले होंगे, कुछ साउथिंग वाले होंगे, तो वो भी अलग अलग कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग. उसी प्रकार से यानी ये जो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट का पार्ट है इतना हमारा, इसमें तो वैसे हमको 2 ही पार्ट चाहिए, लैटिट्यूड और डिपार्चर का. लेकिन लैटिट्यूड में यदि नॉर्थिंग वैल्यू आएंगे तो यहाँ लिखेंगे, साउथिंग आए तो यहाँ लिखेंगे. तो इसके वजह से नॉर्थ साउथ के 2 कॉलम लिखे हैं, लेकिन दोनों में से एक ही डब्बा भरना है आपको यहाँ पे. वैसा ही यहाँ पर डिपार्चर के लिए भी ईस्टिंग और वेस्टिंग रहेगा. तो यहाँ पर भी दोनों में से एक ही वैल्यू लिखना पड़ेगा. एक तो ईस्टिंग में लिखा गया, वैल्यू वेस्टिंग में जाएगी. तो डिपार्चर पॉजिटिव है तो ईस्टिंग में लिखो, निगेटिव है तो वेस्टिंग में लिखो. तो सिर्फ कॉलम हमने अलग अलग कर दिए एक्चुअली, लेकिन वैल्यू हमारी L cos थीटा की है, यहाँ पर L sin थीटा की है. अब ये यदि हमने कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो ये लैटिट्यूड डिपार्चर का हम लोग चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ द लैटिट्यूड इन ए क्लोज टावर इज ऑलवेज 0. तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे लैटिट्यूड की सम 0 करेंगे. तो 0 आती है कि नहीं आती है देखना पड़ेगा. यदि नहीं आती है तो फिर से हमको करेक्शन लगाना पड़ेगा, लैटिट्यूड को करेक्ट करना पड़ेगा. और डिपार्चर, अब यहाँ पे तो हमारा ट्रैवर्स क्लोज ही है, यहाँ पर कोई क्लोजिंग एरर आई नहीं है. क्लोजिंग एरर को हमको रिजॉल्व करना है मैथमेटिकली. तो जो भी लैटिट्यूड की एरर आ जाएगी वो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर से हमको एक कॉलम लगेगा, वो है करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. तो यहाँ पे फिर से 2 कॉलम लगेंगे, एक लगेगा लैटिट्यूड के लिए और दूसरा लगेगा डिपार्चर के लिए. लेकिन हमने इसको 4 इसलिए लिए कि नॉर्थिंग और साउथिंग, और इधर में ईस्टिंग और वेस्टिंग. सो लैटिट्यूड डिपार्चर के करेक्शन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. और फिर ये करेक्शन अप्लाई करने के बाद में ये कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट में करेक्शन अप्लाई करेंगे तो करेक्टेड कोऑर्डिनेट निकलेंगे, यानी करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर निकलेंगे हमारे. तो ये करेक्टेड लैटिट्यूड के लिए फिर से 1 कॉलम और करेक्टेड डिपार्चर के लिए और 1 कॉलम. तो यहाँ पर 2 ही कॉलम लगेंगे. लेकिन ये लैटिट्यूड के अंदर भी नॉर्थिंग साउथिंग अलग अलग कर दिए हमने, और यहाँ पे ईस्टिंग वेस्टिंग अलग अलग कर दिए. अब ये अलग अलग करने का कारण क्या है, ये अलग अलग करने का कारण ऐसा है कि जब हम लोग एक करेक्शन कैलकुलेट करते
तो करेक्शन अप्लाई करने की जो साइन है हमारी, वो साइन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता कि वो करेक्शन की साइन प्लस रहेगी या माइनस रहेगी करके। वो करेक्शन ये नॉर्थिंग साउथिंग पे डिपेंड नहीं रहेगा। रिमेंबर दिस इज नॉट अप्लीकेबल। करेक्शन की साइन ये नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग से नहीं रहेगी। करेक्शन की साइन हमको ये यहाँ पर जो सम करेंगे उसके हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। यदि सम ऑफ द लैटिट्यूड निगेटिव आ गया तो सारे करेक्शन पॉजिटिव रहेंगे लैटिट्यूड में के। तो जो एरर आ गई, करेक्शन आ गया, उसके अपोजिट साइन अपने को यहाँ पर करेक्शन को देना है। तो उसमें फिर हमको ये नॉर्थिंग साउथिंग और ईस्टिंग वेस्टिंग अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि यदि नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो नॉर्थिंग में एरर ज़्यादा रहेगी, तो फिर साउथिंग में ज़्यादा नहीं है, कम है, तो फिर साउथिंग में एरर कम है, तो फिर वो एडजस्टमेंट करने के लिए हमको नॉर्थिंग और साउथिंग का भी टोटल देखना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए हमको यहाँ पे दो दो कॉलम अलग इसमें कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर करेक्टेड कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी एल कॉस थीटा एल साइन थीटा निकाला, फिर उसमें का करेक्शन निकाला और ये करेक्शन अप्लाई करके करेक्टेड निकाल लिया। सो दिस इज डन। अब ये होने के बाद में ये कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट को हमको कन्वर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एनी कॉमन ओरिजिन। सो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ एनी स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहला कोऑर्डिनेट समझ लो हम लोग यहाँ पे 1000, 1000 मान लेंगे। तो उसके रेफरेंस में फिर हमारे बाकी के कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से आगे के कोऑर्डिनेट कहाँ जाएंगे, तो नॉर्थिंग या ईस्टिंग या प्लस माइनस के हिसाब से इसके अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते जाना है आपको। तो आपका कॉमन ओरिजिन हो गया 1000, 1000 एक्स, वाई, जैसा ओरिजिन रहता है 0, 0 का जैसा, और उसके कंपैरिजन में आपके सारे लिख लेंगे। अब ये जो ओरिजिन रहता है कॉमन ओरिजिन, ये हमारा 0, 0 हम लोग नहीं ले सकते। इसके वजह से नहीं ले सकते कि आपके जो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है इसकी साइन प्लस या माइनस रहती है, तो वो फिर कोऑर्डिनेट प्लॉट करते समय हमारा प्रॉब्लम होगा। तो हमको चाहिए एक्स, वाई, यानी दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए। तो इसके लिए हमको ये थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली हमने, लार्जर वैल्यू। तो जो सबसे लंबी लाइन है उससे बड़ा हमारा ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए लंबी। जैसा हमारी लाइन है 400 मीटर की, तो इसलिए मैंने 1000, 1000 ले लिया, यानी 1000, 1000 लेने से आपके सारे निगेटिव कोऑर्डिनेट जो है ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐड और माइनस होके पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस इनिशियल ओरिजिन वी हैव टू चूज इट वेरी मच लार्जर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन इन द ट्रैवर्स। सो ये ओरिजिनल हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट 1000, 1000 मान लिया। तो इसमें आगे के कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो सारे चारों भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सो आवर पर्पज इज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बी, सी एंड डी। और ये कोऑर्डिनेट कौन से है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। सो फॉर दिस वी हैव टू यूज दिस टेबल, और इसके अंदर हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब ये गेल्स-टावर्स टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीजें, हाउ टू कैलकुलेट दिस करेक्शन। करेक्शन कैसे निकालना है लैटिट्यूड और डिपार्चर में का। लैटिट्यूड तो निकाल सकते हैं आप एल कॉस थीटा डी एल साइन थीटा से, लेकिन करेक्शन कैसा निकलेगा तो वो हमको निकालना है अभी यहाँ पे। तो ये करेक्शन निकालने के लिए इसके पहले हमने देखा है, सो देयर आर 3 फार्मूलाज आर देयर फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्शन इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दिस वन। इन द थियोडलेट ट्रैवर्स करेक्शन इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने के लिए यू कैन आइदर यूज द बॉडविच रूल। सो बॉडविच रूल में करेक्शन कैसा निकलेगा, लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स इनटू टोटल एरर इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो ये टोटल एरर इन द लैटिट्यूड डिपार्चर बोले तो सम ऑफ द लैटिट्यूड और सम ऑफ द डिपार्चर जो भी आएगा वो। तो यहाँ पे यदि ये लैटिट्यूड का करेक्शन निकालना है तो यहाँ पे टोटल एरर इन लैटिट्यूड रहेगी, यहाँ पे डिपार्चर का करेक्शन निकालना है तो यहाँ पे टोटल एरर इन द डिपार्चर रहेगा। तो पर्टिकुलर लाइन की लंबाई के हिसाब से, पर्टिकुलर लाइन के लंबाई के हिसाब से आपका जो भी एरर है ना, ये एरर हर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दिस वी आर यूजिंग बॉडविच रूल एंड पर्टिकुलरली वी कंपास ट्रैवर्स। वी आर यूजिंग इन कंपास ट्रैवर्स। तो जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल कंपास ट्रैवर्स में करते हैं।
दूसरा हमारा रूल है वो है ट्रांजिट रूल। तो ये हम लोग थियोडोल्ड ट्रैवर्स में इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं थियोडोल्ड ट्रैवर्स में। तो थियोडोल्ड ट्रैवर्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? सो करेक्शन इन लैटिट्यूड निकालना है, करेक्शन इन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, यानी जो लाइन का करेक्शन निकालना है वो लाइन का लैटिट्यूड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द लैटिट्यूड। अब ये सम बोले तो अलजेब्रिक सम नहीं है, दिस इज टोटल सम, यानी सभी लैटिट्यूड को पॉजिटिव मान के टोटल करना है उसका। तो वो टोटल लैटिट्यूड के हिसाब से ये आपका फैक्टर आएगा, और फिर टोटल एरर इन द लैटिट्यूड, यानी ये हो गया समेशन एल। तो इतनी एरर है हमारे टोटल लैटिट्यूड के अंदर, ये एरर को लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपका वो लाइन में का लैटिट्यूड का करेक्शन निकलेगा। सो लाइक वे वी कैन कैलकुलेट द करेक्शन इन लैटिट्यूड। अब इसके बजाय यदि डिपार्चर है तो फिर यहां पे आपको करेक्शन इन डिपार्चर करना पड़ेगा। करेक्शन इन डिपार्चर निकालना है तो यहां पर आपका हो जाएगा, इसके बजाय यहां पर आ जाएगा डिपार्चर ऑफ दैट साइड। डिपार्चर ऑफ दैट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द डिपार्चर, यहां पे डिपार्चर हो जाएगा। लेकिन ये भी सम कौन सा है? टोटल सम है, यानी सभी डिपार्चर की साइन पॉजिटिव मान के टोटल ऐड कर देना है उसको। तो इतना डिपार्चर ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय दिस, ये होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और वो टोटल एरर इन द डिपार्चर लगेगा, यानी सम ऑफ द डिपार्चर। तो जो एरर आ रही डिपार्चर के अंदर, वो एरर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पर्टिकुलर लाइन के लिए। सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द करेक्शन इन द डिपार्चर ऑल्सो। तो ट्रांजिट रूल इस्तेमाल करके भी हम लोग करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाल सकते हैं, और इसका ही यूज हम लोग थियोडोल्ड ट्रैवर्स में जनरली करते हैं। और अदरवाइज मोर एक्यूरेटली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द करेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्थिंग एंड द साउथिंग। तो नॉर्थिंग साउथिंग हिसाब से हमको जो करेक्शन निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड रूल। सो दिस ऑल्सो वी कैन यूज इन द थियोडोल्ड ट्रैवर्सिंग। दिस वी कैन यूज इन थियोडोल्ड ट्रैवर्सिंग। तो यहां पे भी करेक्शन इन नॉर्थिंग बोलना पड़ेगा, फिर करेक्शन इन नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट निकालना है किसी भी लाइन के लिए, तो नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द नॉर्थिंग। तो ये टोटल सम नॉर्थिंग कहां से आएगी? जो गेल्स ट्रैवर्स टेबल में हमने नॉर्थिंग और साउथिंग के कॉलम बनाए वहां से। सो फ्रॉम दैट देयर वी कैन फाइंड आउट द साउथिंग एंड नॉर्थिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड डिपार्चर जो भी है, यानी यहाँ पे समेशन एल और समेशन डी जो भी निकालना है उसके हिसाब से। तो नॉर्थिंग और साउथिंग के लिए टोटल एरर इन लैटिट्यूड लेना है, और ईस्टिंग और वेस्टिंग के लिए टोटल एरर इन डिपार्चर लेना है। तो यहां से और ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग हर एक लाइन के करेक्शन, नॉर्थिंग और साउथिंग का करेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। सो बाय दिस वे, दिस थ्री फार्मूला, उसमें से हमको जनरली हम लोग ट्रांजिट रूल यूज करेंगे थियोडोल्ड ट्रैवर्सिंग के लिए, और इससे हम लोग करेक्शन निकालना है लैटिट्यूड और डिपार्चर का, एंड देन वी कैन कंप्लीट अवर गेल्स ट्रैवर्स टेबल। सो फॉर दिस पर्पज now we have to see that in the Gauss Travers table we have to take first the observation in the field. तो थियोडोल्ड ट्रैवर्स का यदि आपको एक्यूरेट प्लॉटिंग करना है, तो पहला तो तरीका हमने इसके पहले थियोडोल्ड ट्रैवर्स के 3 तरीके देखे, इंक्लूड एंगल मेथड या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड या मैग्नेटिक बेरिंग मेथड। बट हियर देयर इज चांस दैट देयर मे बी क्लोजिंग एरर। तो उसमें प्लॉटिंग करने के बाद में क्लोजिंग एरर आ सकती है, तो क्लोजिंग एरर तो नहीं चाहिए, और मोर एक्यूरेटली ट्रैवर्स प्लॉट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज बाय कैलकुलेटिंग द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो यदि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए x, y, यानी लैटिट्यूड, डिपार्चर, तो आप कॉमन ओरिजिन से हर एक पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, सो वी विल ड्रॉ x एंड y एक्सिस। सो दिस इज नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग, और ये कॉमन ओरिजिन हो जाएगा आपका। और फिर स्टेशन ए का लैटिट्यूड डिपार्चर कितना है, तो इतना लैटिट्यूड है, इतना डिपार्चर है, तो ये हो गया स्टेशन ए। फिर बी पॉइंट का यहाँ पे आएगा कहीं, तो
सो सपोज दिस इज बी, तो ये लाइन ए बी हो गई मेरी, तो ये बी का लैटिट्यूड इतना हो जाएगा और डिपार्चर इतना हो जाएगा। फिर सी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हो गया सी, तो ये सी पॉइंट के लिए ये इतना लैटिट्यूड हो जाएगा और इतना हो जाएगा डिपार्चर। और फिर डी पॉइंट है यहाँ पे समझ लो, सो दिस इज डी, तो इसके लिए भी लैटिट्यूड इतना ही हो जाएगा हमारा और डिपार्चर ये हो जाएगा, वर्टिकल लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल डिपार्चर, तो ये डी हो गया और उसको ए पे ज्वाइन कर दो। तो हर एक पॉइंट के लिए नॉर्थिंग पे लैटिट्यूड और हॉरिजॉन्टल डिपार्चर, ऐसा करके ये चारों भी पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लोजिंग एरर आने का कोई चांस ही नहीं है और इसकी लेंथ वगैरह भी सब आपके एक्यूरेट आ जाएगी, एंगल भी आपके बराबर आ जाएंगे। तो एक्यूरेट ट्रैवर्स यदि प्लॉट करना है, सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यदि निकालना है तो हमको इस प्रकार से गेल्स ट्रैवर्स टेबल जो है वो भरना पड़ेगा। सो हियर इन दिस गेल्स ट्रैवर्स टेबल अगेन वी विल टेक फॉर एग्जांपल हियर। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लाइन है मेरी ए बी, उसकी लंबाई है 250 मीटर, वो भर दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरा ए, तो पॉइंट अलग लाइन में लिखना है, लाइन अलग लाइन में लिखना है। तो हर एक लाइन के लिए 2 लाइन लगेगी, 2 रो लगेंगे हमको, ये यू हैव टू रिमेंबर। फिर आएगा उसके बाद में एंगल, तो मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया, ये ऑब्जर्व किया हुआ एंगल है मेरा थियोडाइट से, सो दिस इज 95 डिग्री 24 मिनट। देन अब ये एंगल मैंने ऐसे चारों भी लिख दिया यहाँ पे, दूसरा ये और ये चौथा, चारों एंगल मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि इंक्लूडेड एंगल अभी यदि आपकी ये है तो इंक्लूडेड एंगल का चेक करना पड़ेगा अपने को। सो वी हैव टू अप्लाई द चेक फॉर इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का चेक हमको क्या करना है, सो दैट इज एक्चुअली 2n-4 इंटू 90, इतना आपका एंगल आना चाहिए। अब यहाँ पे n बोले तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 4, सो 8 माइनस 4 और 4 इंटू 90, सो दिस इज 360 डिग्री आ रहा है, 9-36 360 डिग्री। यानी यहां पर हमारा इंक्लूडेड एंगल की टोटल 360 डिग्री आनी चाहिए। अब ये चेक अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये एंगल की टोटल किया मैंने यहां पर, सो व्हाट हैपन हियर, ये टोटल जो है ना मेरी यहां पर, ये टोटल आ गई मेरी 360 डिग्री 24 मिनट। तो ये 24 मिनट आने के वजह से क्या हो गया यहाँ पे, सो देयर इज स्मॉल एरर, दिस इज 24 मिनट इज द एरर इन आवर इंक्लूडेड एंगल। नाउ दिस एरर वी हैव टू रिजॉल्व। तो अब मेरा यहां पर ये एंगल में 24 मिनट का एरर है और इंक्लूडेड एंगल में मुझे करेक्शन करना है। सो हियर दिस करेक्शन आई हैव टू अप्लाई। अब मेरे पास में यानी 360 डिग्री मेरी टोटल आनी चाहिए थी और मेरी टोटल आ गई 360 डिग्री 24 मिनट, यानी 24 मिनट प्लस, सो देयर इज एरर ऑफ 24 मिनट प्लस वाली। तो इतनी एरर मुझे रिजॉल्व करना है तो मुझे करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा -24 मिनट का, इतना करेक्शन मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये -24 मिनट का करेक्शन करना है और एंगल है मेरे 4, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो हर एक इसमें एरर कितनी आ जाएगी, -6 मिनट। तो -6 मिनट ये मेरा हर एक एंगल का करेक्शन हो गया। तो अब आप यहाँ पे -6 मिनट ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पे, -6 मिनट -6 मिनट, सब जगह पे आपको करेक्शन लगा देना है -6 का। सो ये माइनस ऐसा आएगा यहाँ से, यानी हमारा टोटल 360 आना चाहिए था, टोटल आ गई हमारी 360 डिग्री 24 मिनट, यानी 24 मिनट टोटल ज़्यादा भर रही है। तो वो ज़्यादा भरने के लिए, कम करने के लिए करेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो -24 मिनट को 4 एंगल में डिवाइड कर दिया तो वो आ गया 6 मिनट। सो आई हैव अप्लाइड द करेक्शन ऑफ 6 मिनट इन एवरी एंगल। तो यहाँ पे अभी मेरा हर एक एंगल का करेक्शन आ गया। तो 95 डिग्री 24 मिनट था, -6 मिनट अप्लाई कर दिया मैंने करेक्शन, तो मेरा एंगल यहाँ पे 95 डिग्री 18 मिनट आ गया। ये करेक्टेड एंगल है मेरा, दिस इज करेक्टेड एंगल। सो चारों भी एंगल मैंने इसी प्रकार से करेक्टेड एंगल निकाल लिए। सो दिस इज एक्चुअली रिक्वायर। तो यहाँ पे 360 डिग्री 24 मिनट का -24 मिनट का करेक्शन किया, तो अब टोटल मेरी इंक्लूड एंगल के 360 डिग्री आएगी। नाउ दिस इज द चेक। तो गेल्स ट्रैवर्स टेबल के पहले पार्ट में आपको पहले इंक्लूडेड एंगल का करेक्शन लगाना है। ऑलरेडी वी हैव सीन इन द कंपास सर्वे, हमने देखा है उसके अंदर। सो दैट वी हैव डन। अब इसके बाद में हमारा नाउ वी आर हैविंग द बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी।
तो ए बी लाइन की लेंथ है 250 मीटर और बेरिंग मैंने यहां पर एंटर कर दिया 86 डिग्री 42 मिनट। नाउ दिस फर्स्ट बेरिंग इट इज एक्यूरेटली मेजर्ड इन द फील्ड। तो फील्ड में आपको थियोडलाइट को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सेट करना है 0 डिग्री पे और वो लाइन का बेरिंग गिन लेना है ए बी लाइन का। अब ये एक बेरिंग यदि मिल गया तो इसमें आप इंक्लूडेड एंगल का कैलकुलेशन करके, इंक्लूडेड एंगल को ऐड करके या प्लस करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आगे के बेरिंग आप निकाल सकते हो। सो दीज आर द बेरिंग विच आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंक्लूडेड एंगल। तो पहले लाइन का बेरिंग आपने ऑब्जर्व किया और बाकी लाइन के बेरिंग आपने ये करेक्टेड एंगल पे से निकाले, और यू कैन अप्लाई द मैग्नेटिक बेरिंग मेथड इन द ट्रैवर्सिंग, तो उससे भी आपको ये बेरिंग मिल जाएंगे। सो फॉर एवरी लाइन द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज द होल सर्कल बेरिंग दैट वी आर रिटन हियर फॉर ऑल द 4 लाइन्स। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिड्यूस बेरिंग। क्वाड्रेटल बेरिंग क्या है हमारे फिर लाइन का, तो यहाँ पे क्वाड्रेटल बेरिंग में क्या हो रहा है, 86 डिग्री बोलो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ 86 डिग्री 42 मिनट, ये मेरा आ गया रिड्यूस बेरिंग। यानी यहाँ पे मुझे मिल गया थीटा, दिस इज थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रिमेंबर वर्टिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बाद में लाइन का एंगल कितना है, वो एंगल यहाँ पे 86 डिग्री 42 मिनट आ गया। नाउ फॉर सेकंड 178 डिग्री 06 मिनट है, सो इट इज साउथ ईस्ट, सो दिस इज साउथ ईस्ट, साउथ 1 डिग्री 54 मिनट ईस्ट। So you have to convert all these whole circle bearing into reduced bearing format. So now this is done. अब ये होने के बाद में this is our first part of the Gales-Travers table. यहाँ पे आपका Gales-Travers table का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने लाइन की लंबाई, इंक्लूडेड एंगल और बेरिंग, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे तीनों भी, ये हमने यहाँ पर भर दिए। सो एंड एंगल का करेक्शन भी कर दिया। नाउ इन द सेकंड पार्ट, now we have to calculate the latitude and departure. So this latitude and departure is nothing but L cos theta and D L sin theta. So this is called as consecutive coordinate. तो consecutive coordinate के लिए मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, वैसे तो यहाँ तक मुझे 2 कॉलम चाहिए, एक लैटिट्यूड का और एक डिपार्चर का। सो आई विल रिक्वायर ओनली 2 कॉलम, बट व्हाट हियर डन कि लैटिट्यूड में भी नॉर्थिंग साउथिंग है तो मैंने 2 भाग कर दिए उसके, और डिपार्चर में ईस्टिंग वेस्टिंग है तो 2 भाग कर दिए। So here therefore this is actually latitude and this is departure. तो लैटिट्यूड में नॉर्थिंग साउथिंग रहेगा या फिर डिपार्चर में भी ईस्टिंग वेस्टिंग रहेगा। सो किसी भी लाइन के लिए एक ही नॉर्थिंग आएगा या फिर साउथिंग आएगा, दोनों भी नहीं आएंगे, और ईस्टिंग वेस्टिंग में भी एक ही आएगा। तो अब ये लाइन हमारी पहली लाइन है ए बी, तो स्टेशन ए के लिए या ए बी लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे एल कॉस थीटा यानी लेंथ है 250 और एंगल है 86 डिग्री 42 मिनट, तो एल कॉस थीटा करेंगे अब, और वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमने उसको नॉर्थिंग में लिख दिया यहाँ पे। उसी प्रकार से एल साइन थीटा करेंगे, तो लेंथ है 250 और एंगल है 86 डिग्री 42 मिनट, तो एल साइन थीटा से हमारी जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई, तो हमने ईस्टिंग में लिख दी। यानी यहाँ पे साउथिंग में कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पे वेस्टिंग में कुछ भी नहीं रहेगा, रिमेंबर। सो दिस वे नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग वी हैव कैलकुलेटेड। फिर दूसरे लाइन के लिए भी करो वैसा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो नॉर्थिंग में लिख दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव आया तो ईस्टिंग में लिख दिया। तीसरे लाइन के लिए यहाँ पर निगेटिव आया तो साउथिंग में लिख दिया मैंने, सो दिस इज साउथिंग कॉलम, और ये ईस्टिंग पॉजिटिव आ गया तो ईस्टिंग में लिख दिया मैंने। फिर फोर्थ लाइन के लिए नॉर्थिंग आ गया तो पॉजिटिव में लिख दिया मैंने, 0 वैल्यू आ गई उसकी, और यहाँ पे वेस्टिंग आ गया तो ये वेस्टिंग के कॉलम में लिख दिया मैंने। तो हर एक के लाइन के लिए 2 ही वैल्यू है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, बट वी हैव मेड इट नॉर्थिंग साउथिंग सेपरेट, ईस्टिंग वेस्टिंग सेपरेट। तो अब हमारे ये लैटिट्यूड डिपार्चर निकल गए। अब इसका चेक करना है हमको क्या चाहिए, इन एनी क्लोज ट्रैवल द सम ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज 0, सो वी हैव टू मेक दिस चेक। तो हम लोग अभी ये लैटिट्यूड की सम करेंगे, तो अभी मैं नॉर्थिंग की सम कर देता हूँ, वो हो गई मेरी यहाँ पर 122.36, और ये साउथिंग की टोटल कर देता हूँ, वो हो गई 122.54, और ये दोनों की यदि मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर मेरी टोटल में फर्क आ रहा है -0.58 का। सो दिस इज -0.58, ये मेरी समेशन लैटिट्यूड हो गई, समेशन एल, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज -0.58 इन दिस केस। वैसे डिपार्चर का करेंगे तो डिपार्चर का ईस्टिंग आ गया 257.46 और वेस्टिंग आ गया 256, और ये ईस्टिंग में से वेस्टिंग माइनस करेंगे
तो ये हो गया 1.46, लेकिन प्लस है ये, सो दिस इज द समेशन डिपार्चर। तो समेशन डिपार्चर 1.46 प्लस आ गया और समेशन लैटिट्यूड माइनस 0.58 आ गया। यानी इसका मतलब है कि हमारे इसके अंदर क्लोजिंग एरर आ गई। ये लैटिट्यूड डिपार्चर में हमको अप्लाई कराना पड़ता करेक्शन, और वो कितना करेक्शन है, कम है वैसा, माइनस 0.58 मीटर और ये प्लस 1.46 मीटर। तो इतना करेक्शन हमको अभी एडजस्ट करना है, और ये एडजस्ट करना है चारों भी लाइन में करना है इक्वली। अब ये चारों लाइन में इक्वली एडजस्ट करने के लिए हमको फिर यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा यहां पे। सो हियर हमको यहां पर क्या इस्तेमाल करना है, हमने अभी देखा रूल, सो वी हैव टू यूज ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल हमको निकालना है। ट्रांजिट रूल से हर एक लाइन के लिए आपको करेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो अब जहां पे नॉर्थिंग है वहीं पे करेक्शन आएगा, ये तो हमको ख्याल में रखना है। यहां ईस्टिंग है तो यहीं पे करेक्शन रहेगा, लेकिन अब इसकी साइन कैसी रहेगी और क्या रहेगा वो हमको देखना है। सो रिमेंबर हियर, अभी हमको पहले तो फार्मूला क्या है हमारा ट्रांजिट रूल का करेक्शन का, तो ट्रांजिट रूल का करेक्शन का फार्मूला है हमारा करेक्शन इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड इनटू टोटल एरर। ये फार्मूला हमने देखा। अब समझ लो पहले लाइन के लिए यदि करना है तो पहले लाइन के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो पहले लाइन का लैटिट्यूड कितना है हमारा, देखो यहां पर है 107.97, सो 107.97 ये है लैटिट्यूड। और सम ऑफ द लैटिट्यूड बोले तो अलजेब्रिक सम नहीं चाहिए हमको, हमको टोटल सम चाहिए। टोटल सम बोले तो ये दोनों भी कॉलम की टोटल सबको प्लस वैल्यू मान के, तो वो 122.36 प्लस 122.54, ये टोटल आप यहाँ पे आ जाएगा 122.36 प्लस 122.54, यानी ये हो गया पॉजिटिव सम ऑफ द लैटिट्यूड, पॉजिटिव सम ऑफ द लैटिट्यूड। और टोटल एरर कितनी है हमारी, माइनस 0.58, ये अभी हमने निकाला समेशन लैटिट्यूड, तो ये है माइनस 0.58, यानी माइनस 0.58 की जो एरर है टोटल, ये लैटिट्यूड के लाइन के प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस नाउ। सो फर्स्ट आई विल सॉल्व आउट 122.36 प्लस 122.94, ये टोटल सम है मेरी लैटिट्यूड की नीचे की, और लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन कितना है 107.97। इसके प्रोपोर्शन में मैंने उसको डिवाइड किया सम से, और जो फैक्टर आया ये फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाइड किया 0.58 से, तो ये करेक्शन आ गया मेरा 0.26। तो ये पहला करेक्शन आ गया मेरा 0.26। अब ये 0.26 साइन इसकी क्या लिखना है, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो आप कर लेंगे। ये देखो ये होगा लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन यानी 107, और ये हो गया सम ऑफ द लैटिट्यूड। सम ऑफ द लैटिट्यूड का मतलब सब वैल्यू को पॉजिटिव मान के ऐड कर देंगे, तो ये 200 कुछ आ रहा है यहां पर, वो हो गया, यानी ये फैक्टर हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और हर एक लाइन का जो एरर है हमारी 0.58 है, इसको हमको 4 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 0.58 को ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाइड किए, तो ये आ गया 0.26। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड की एरर हमारी निगेटिव है, माइनस 0.58 है, इसलिए ये लैटिट्यूड के सारे करेक्शन हमको प्लस लिखने पड़ेंगे, दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0.26 प्लस लिख दिया, क्योंकि मेरा ये प्लस लैटिट्यूड है और उसको मुझे ये एरर को निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव करेक्शन मैं अप्लाई करूंगा। तो इस प्रकार से फिर अगले लाइन के लिए भी अगले लाइन का लैटिट्यूड डालो, यहाँ पे टोटल सम उतनी रहेगी और टोटल करेक्शन भी उतने रहेगा, तो आगे का लाइन का भी वैल्यू निकलेगी। इस प्रकार से हमने हर एक लाइन के लिए, ये लाइन के लिए ये करेक्शन, फिर दूसरे लाइन के लिए ये दूसरे लाइन के लिए ये वाला करेक्शन, और तीसरे लाइन के लिए ये वाला करेक्शन। तो ये तो हो गया मेरा करेक्शन इन द लैटिट्यूड, ये हो गया करेक्शन इन द लैटिट्यूड, रिमेंबर। अब ये करेक्शन में यहां पर भी हमको और एक ध्यान रखना है कि यहां पे जो वैल्यू है ये है 122.36 और इधर 122.54, यानी इधर की वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, लेस, और ये वैल्यू है मोर। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थिंग के अंदर हमको बढ़ाना पड़ेगा,
और साउथिंग के अंदर कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्थिंग की टोटल लेस है और साउथिंग की टोटल ज़्यादा है। तो हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब ये -0.580 हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा कम करना है। इसलिए नॉर्थिंग के सारे करेक्शन मैंने प्लस प्लस कर दी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यानी मैंने 122.36 को थोड़ा सा बढ़ाया, और ये वाले जो इधर के साउथिंग के जो करेक्शन है इसको मैंने माइनस किया। तो ये इसके हिसाब से ये साइन प्लस 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 और ये माइनस आएंगी। तो ये प्लस और माइनस की साइन ये नॉर्थिंग की टोटल और साउथिंग की टोटल देख के हमको डिसाइड करना है। इसका मतलब अभी इधर की टोटल 122.36, तो अब ये बढ़ जाएंगी और 122.54 कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये पहले लैटिट्यूड का पार्ट हो गया, इतना पूरा करेक्शन का। इसी प्रकार से फिर से यही फार्मूला लगाना है हमको, और ये फार्मूला लगा के हमको फिर से डिपार्चर का करेक्शन निकालना है। सो हियर व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से फार्मूला निकालेंगे हम लोग। तो ये फार्मूला है हमारा यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डिपार्चर ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ डिपार्चर इनटू एरर इन डिपार्चर, ऐसा करना है। तो अब एरर इन डिपार्चर हमारी इस केस में है 1.46, तो ये हो गया 1.46 की प्लस की एरर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, तो जो लाइन का कैलकुलेट करना है उसके लाइन का डिपार्चर, यानी मेरा लाइन ए बी का डिपार्चर है ईस्टिंग वाला 3.77, सो 3.77 डिवाइडेड बाय पूरे डिपार्चर की टोटल, तो ये सम टोटल आ जाएंगे यहाँ पे कुछ तो भी 257.46 प्लस 256, और फिर यहाँ से आपका एक निकलेगा। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है करीब करीब यहाँ पर 0.01 की आ रही है। लेकिन फिर से 0.01 की साइन क्या रखना है, प्लस या माइनस, तो वो आपका डिपेंड करता है ये डिपार्चर का ईस्टिंग और वेस्टिंग की वैल्यू क्या है। अब ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पर फिर से देखेंगे हम लोग, तो ईस्टिंग की वैल्यू हमारी है 257.46 यानी लेस है, और ये 256 बोले तो मोर है, यानी ये 257.46 मोर है हमारी, सॉरी। तो 256 की जो वैल्यू है इसको कम करना पड़ेगा, सॉरी, और इसको 257 को कम करना पड़ेगा, 256 को बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमको बैलेंस बनाना है। तो ये 257.46 को कम करना है, इसलिए मैंने ईस्टिंग के सारे वैल्यू निगेटिव लिखे यहाँ पे, क्योंकि मुझे टोटल 257.46 थोड़ी कम होने को होना था, और ये 256 को बढ़ाना था, तो मैंने वेस्टिंग के सब यहाँ पे प्लस लिख दिए। तो ये नॉर्थिंग साउथिंग या ईस्टिंग वेस्टिंग अलग अलग करने का उपयोग ही ये है कि ये करेक्शन की वैल्यू की साइन क्या रखना है, ये आपको ये टोटल सम से पता चलता। यदि हम लोग डायरेक्ट एक ही कॉलम रखेंगे तो फिर ये कैलकुलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम जाएगा साइन डिसाइड करने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे साउथिंग नॉर्थिंग अलग अलग कैलकुलेट किए, ईस्टिंग वेस्टिंग अलग अलग कैलकुलेट किए, और ये टोटल देख के फिर ये अप्लाई करना है करेक्शन के साइन। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो टोटल है ये करेक्शन निकल गया, यानी ये कॉलम में आपका करेक्शन आ गया यहाँ तक का। तो अब आपका कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट मालूम है, करेक्शन मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट करेक्टेड कोऑर्डिनेट। तो अब इजी है हमारे पास में, 107.97 हमारा लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड का करेक्शन है प्लस 0.26, तो इसको ऐड करके यहाँ लिख दो 108.23 आ गया। सो दिस वी कैन कैलकुलेट। फिर दूसरे लाइन के लिए 3.77 डिपार्चर है और डिपार्चर का करेक्शन है -0.01, तो आपका ये डिपार्चर आ गया 3.76। तो इस प्रकार से करेक्शन अप्लाई करके आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लैटिट्यूड डिपार्चर चारों लाइन के निकल गए। सो दिस इज करेक्टेड कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन ए बी, करेक्टेड कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन बी सी, लाइन सी डी एंड लाइन डी ई। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बराबर निकल गए। अब ये हो गए कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट बिकॉज दे आर फॉर पर्टिकुलर लाइन ओनली। हर एक लाइन का इंडिविजुअल एल कॉस थीटा एल साइन थीटा करेक्टेड वैल्यू हमारी ये वाली है। अब इस पे से हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि हमारा टारगेट है गेल्स-स्टावर्स टेबल का। तो ये गेल्स-स्टावर्स टेबल में हम लोग यहां से हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो गेल्स-स्टावर्स टेबल में सबसे पहला काम क्या करना है, तो हमको कोई भी पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो एज्यूम कर लेना है यहाँ पे।
सो दिस वैल्यू ये कैसी एज्यूम करेंगे हम लोग, तो ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की पहली वैल्यू हमको ऐसी चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी लंबाई है यहाँ पे, या हमारा जो लैटिट्यूड डिपार्चर है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए वो। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि वह सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट का मैंने एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल 200, और दूसरा ये ईस्टिंग मैंने एज्यूम कर लिया 100। तो ये 200 के अंदर आगे के लाइन का यानी ये 200 में ये आगे के लाइन का कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तो ये 214.42 हो गया, और ये 100 के अंदर ये ऐड कर दो तो ये हो गया 348.55, ये हो गया आगे के लाइन का कोऑर्डिनेट। यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ आसान है, आपको ये जो साइन है उसके हिसाब से सिर्फ उसको ऐड या माइनस करते जाना है। यानी अभी यहां पर 14.42 नॉर्थिंग है तो ये 200 के अंदर ऐड कर दिया मैंने, और ये 248.86 ये ईस्टिंग है तो ईस्टिंग भी प्लस रहता, नॉर्थिंग भी प्लस रहता, तो ये भी ऐड कर दिया मैंने। तो आगे के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब ये वाले कोऑर्डिनेट में इसके आगे में फिर साउथिंग है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 214 में माइनस करना पड़ेगा 122, तो ये वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि साउथिंग है इसलिए माइनस किया मैंने। और ये वाले वैल्यू में ये वैल्यू माइनस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ईस्टिंग ही है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके आगे वाले इसमें आगे का क्या है, नॉर्थिंग है तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। और बाद में का क्या है, वेस्टिंग है मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो पहला कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लो, जनरली ये कोऑर्डिनेट आपने थोड़ा सा 1000, या 10,000, 10,000 जितना बड़ा ट्रैवर्स रहेगा उसके हिसाब से बड़ी वैल्यू लेना चाहिए, ताकि आगे के सारे कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे। इसका पर्पज ही ये है कि पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा एज्यूम करने का, इसलिए कि यहाँ पे नॉर्थिंग साउथिंग की कितनी भी वैल्यू माइनस में भी गई तो भी आखिरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव में ही रहेगा, सब माइनस करते करते आएंगे तो भी। सो देयरफॉर फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वी हैव टू एज्यूम एज 1000, 1000 और 10,000, 10,000 और 5,000, 5,000, और डिफरेंटली ऑल्सो यू कैन एज्यूम। और फिर कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट नेक्स्ट लाइन के आपको ऐड करते जाना है। तो यदि ऐड करते जाएंगे तो आगे के कोऑर्डिनेट के आगे के पॉइंट्स के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब ये बराबर है कि नहीं कैसा चेक पता चलेगा अपने को, तो आपको क्या करना है, जो पहला तो हमने एज्यूम कर लिया, फिर उस पे से दूसरे लाइन का ऐड करके निकाला, फिर तीसरे लाइन का ऐड करके ये निकाला, चौथी लाइन का ऐड करके ये निकाला। अब इसके अंदर पहले लाइन का ऐड करके देखो, यदि आप इसके अंदर ऐड करके देखेंगे तो आखिरी के कोऑर्डिनेट आपके फिर से ये जितने पहले हैं ना उतने आने चाहिए। यानी 91.71 में 100 ऐड करेंगे तो 200 आता बराबर, और 96.23 में 3.70 करेंगे तो 100 आता। यानी यहाँ पे आखिरी का कोऑर्डिनेट आप यदि ऐड करेंगे तो 200 का 100 आएगा, तो पहला और आखिरी का बराबर है, इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट की सिस्टम में आपका ट्रैवर्स क्लोज हो गया बराबर। यानी 200 का 100 से शुरुआत किए थे और ऐसा करते फिर से 200 का 100 पे वापस आ गए। तो इस प्रकार से गेल्स ट्रैवर्स टेबल से हमको क्या मिला, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच स्टेशन पॉइंट। और यही हमारा गेल्स ट्रैवर्स टेबल का पर्पज है कि हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्वे स्टेशन निकालना है। अब आपका काम आसान है, आपके पास में डायरेक्ट XY हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सो फॉर प्लॉटिंग द ट्रैवर्स, आपके पास प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम आसान है आपके पास। हमारे पास में फाइनल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है हर एक स्टेशन के, ये वाले। अब मुझे प्लॉट करने के लिए एकदम आसान है कि ये हो गया नॉर्थिंग और ये हो गया ईस्टिंग और ये हो मेरा 0,0। अब ये 0, के हिसाब से पहला कोऑर्डिनेट 200, यानी ये 200 जाएगा कहीं तो भी, और दूसरा यहाँ पे 100, यानी ये 100 आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया स्टेशन ए। सो 200 और ये 100। फिर ये बी का है 214 और 348, यानी 200 से भी ऊपर आएगा, ये 314 और ऐसा है 348, यानी थोड़ा दूर जाएगा इधर, ये आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी, तो ये ए बी लाइन हो गई। फिर आ गया 91 यानी 352, तो यहाँ से आएगा 91 और 352 बोले तो यहाँ आएगा ये, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट। और फिर है 91 और 96, यानी यहाँ से 91 और 96, तो यहाँ पे डी पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया डी। तो ए बी सी डी ये हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लॉट करके की हमने। ये सी पॉइंट का एटीट्यूड है और ये डिपार्चर है और ये लैटिट्यूड है। तो कॉमन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के पॉइंट को मार्क करके ट्रैवर्स को प्लॉट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने से
यहाँ पे कोई क्लोजिंग एरर आने वाली नहीं है, और आपका लेंथ भी एक्यूरेट आएगी, इंक्लूडेड एंगल भी एक्यूरेट आएगा, और सारे करेक्शन इसलिए इंक्लूडेड एंगल का करेक्शन लग गया इसके अंदर। आपके बियरिंग के अंदर से आपने इंक्लूड एंगल कैलकुलेट किए तो वो भी आपके बराबर आ गए, लेंथ की आपकी बराबर आ जाएगी, और यू विल गेट द एक्यूरेट ट्रैवर्स बाय यूजिंग दिस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैलकुलेटेड फ्रॉम द गेल्स ट्रैवर्स टेबल। सो इन दिस वे हमको गेल्स ट्रैवर्स टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा पूरा ये डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्चुअली दिस एग्जाम्पल वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So here in this way again, this is one of the example. Here we can enter the angle, calculate the correction, and then we can calculate the independent coordinate. तो यहाँ पे आपको एक पार्ट 1 दिख रहा है पहले बराबर। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पॉइंट, फिर उसका एंगल, फिर एंगल का मैंने करेक्शन अप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा करेक्शन। तो ये पिछला ही वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप किया उसको। अब इस पे से ये करेक्टेड एंगल निकल गया, तो यहाँ पे टोटल उसकी बराबर आ गई। फिर पहले लाइन का लेंथ है 250, उसका होल सर्कल बेरिंग 86 डिग्री 40 मिनट है, तो उसको रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट किया मैंने, और इसका क्वाड्रेंट है फर्स्ट। यहाँ तक हो गया। फिर अभी ये 250 इंटू एल कॉस थीटा करेंगे, तो ये निकल का लैटिट्यूड और ये निकल का डिपार्चर। ऐसे ही लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, ये चारों लाइन का कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई सम टोटल ऑफ लैटिट्यूड, ये हो गई सम ऑफ द डिपार्चर, और दोनों की टोटल करेंगे तो -0.58 ये हमारा लैटिट्यूड डिपार्चर का करेक्शन है। सेम प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे आपको एनलार्ज में सब वैल्यू दिख रही है क्लियर। तो ये पार्ट 1 आपको पहले कंप्लीट कर लेना है आसानी से। एक बार गेल्स ट्रैवर्स टेबल का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया कि फिर हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते। सो हियर द नेक्स्ट पार्ट 2, हियर हाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर यहाँ लिख दिया मैंने अभी, देखो, और लैटिट्यूड की टोटल इतनी, डिपार्चर की इतनी, दोनों का एरर आ गया -0.58, ये हो गया मेरा बराबर यहाँ पर अभी। अब इस पे से मुझे क्या करना है, ये लैटिट्यूड पे से यदि ये नॉर्थिंग है तो नॉर्थिंग में लिखना है, ये भी नॉर्थिंग है तो नॉर्थिंग में लिखना है, ये साउथिंग है तो मैं साउथिंग में लिख दे रहा इसको, क्योंकि वैल्यू माइनस आई थी मेरी, और यहाँ पर ये नॉर्थिंग है तो नॉर्थिंग में, साउथिंग में। तो यही लैटिट्यूड डिपार्चर की वैल्यू नॉर्थिंग साउथिंग में कर दिया मैंने। यहाँ पर भी मैंने इसको नॉर्थिंग, सॉरी ईस्टिंग, 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 और ये वेस्टिंग में कर दिया। तो यहाँ पे मेरी नॉर्थिंग की टोटल अलग आ रही और साउथिंग की टोटल अलग आ रही, और दोनों की टोटल करेंगे तो ये हो रही मेरा टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। ये है हमारा समेशन एल, और ये है हमारा समेशन डिपार्चर। अब ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर के अंदर हमको करेक्शन निकालना है। करेक्शन के लिए हमने देखा कि ट्रांजिट रूल इस्तेमाल करना है। ट्रांजिट रूल के लिए हमने क्या करना है, तो इसलिए मैं ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी यहाँ पे लैटिट्यूड का करेक्शन है -0.58, और ये दोनों लैटिट्यूड को यदि सबको प्लस मान के टोटल करते हैं, सो दिस इज टोटल सम ऑफ द लैटिट्यूड, यानी -0.58 डिवाइडेड बाय 245.30, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करेक्शन निकालने के लिए। इसलिए मैं आपको ये टेबल फिर से दिखा रहा हूं यहाँ पे। उसी प्रकार से ये जो ईस्टिंग और वेस्टिंग के सारे डिपार्चर को पॉजिटिव मान के टोटल करेंगे तो वो आएगी 513.46, और यदि अल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो आएंगी +1.46। तो 1.46 हो गया टोटल एरर इन द डिपार्चर डिवाइडेड बाय टोटल सम, यानी 513.46। तो ये डिपार्चर का करेक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यदि आप निकाल लेते हो ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये लैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेक्शन निकलेगा, ये लैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेक्शन निकलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। तो ये चारों भी वैल्यू आपकी ये फैक्टर को लैटिट्यूड या डिपार्चर से मल्टीप्लाई करने से ये आएंगी। अब इसमें फिर से वही अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे साइन प्लस और माइनस, करेक्शन की साइन प्लस और माइनस कैसे रखना है। तो यहाँ पे करेक्शन की साइन ये नॉर्थिंग साउथिंग पे डिपेंड नहीं रहेगी, रिमेंबर दिस वी हैव टू फॉरगेट। तो साइन कहाँ पे डिपेंड रहेगी, ये जो नॉर्थिंग की टोटल है ये 122.36 आ रही, और साउथिंग की टोटल 122.54 आ रही, यानी ये टोटल ज़्यादा है, दिस इज मोर और दिस इज लेस। यानी करेक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि 122.36 थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और 122.54 थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू एक जैसी आएंगी तो सम ऑफ द लैटिट्यूड 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लेस वाले को बढ़ाना है, तो ये नॉर्थिंग वाले इसमें मैंने सबकी साइन प्लस ले लिया यहाँ पे, और ये साउथिंग वाले को मुझे कम करना है
तो साउथिंग वैल्यू की वैल्यू मैंने निगेटिव ले ली यहाँ पे, रिमेंबर। तो इस प्रकार से ये साइन मैंने डिसाइड कर दिया। इसी प्रकार से डिपार्चर में भी, ये डिपार्चर की ईस्टिंग की टोटल करेंगे तो ये आ रही 257.46 और वेस्टिंग के करेंगे तो 256 आ रही है, यानी ये मोर है और ये लेस है। तो ये ज़्यादा है तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा, यानी इसलिए ईस्टिंग के करेक्शन मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो ये सारे करेक्शन मेरी ईस्टिंग के माइनस है। और ये 256 है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी वेस्टिंग वाले को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो वेस्टिंग के करेक्शन प्लस रहेंगे मेरे, तो ये वेस्टिंग का करेक्शन मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे। तो ये नॉर्थिंग साउथिंग का कॉलम माना अलग अलग इसीलिए किया है कि करेक्शन की साइन आपको पता चले। अब ये करेक्शन की साइन पता चल गई ना, तो अब आप देख सकते कि ये नॉर्थिंग की टोटल प्लस 0.29 आ गई और यहाँ पे माइनस 0.29 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का एरर प्लस 58, यानी इतना एरर बराबर एडजस्ट हो गया। यहाँ पे माइनस 0.58 का प्लस 58 एडजस्ट हो गया। और वैसे ही यहाँ पर इसकी टोटल माइनस आ गई और इसकी प्लस आ गई, और ये दोनों की टोटल आ गई माइनस 1.46। तो यानी ये प्लस एरर थी, तो यहाँ पे माइनस करके 0 हो जाएंगे यहाँ पर। सो इस प्रकार से ये साइन डिसाइड करना है। फिर आप उससे करेक्टेड कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी लैटिट्यूड में लैटिट्यूड का करेक्शन। सो 107.97 प्लस 0.26 तो ये आ गया, 3.77 में माइनस 0.01 तो ये आ गया। तो ये हो गए आपके नॉर्थिंग साउथिंग करेक्टेड कोऑर्डिनेट। अब ये करेक्टेड कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम किया 200, 100 का, फिर उसके अंदर ये वाली वैल्यू प्लस किया बिकॉज दिस इज नॉर्थिंग, और ये वैल्यू मैंने ये भी प्लस किया बिकॉज दिस इज ईस्टिंग। फिर ये इसके अंदर ये वैल्यू मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि साउथिंग है, और इसके अंदर ये वैल्यू मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ईस्टिंग है। तो ये दोनों निकलेंगे। फिर ये वैल्यू में ये 0 नॉर्थिंग है तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। और इसके अंदर ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वेस्टिंग है, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गए, ए, बी, सी और डी, चारों पॉइंट के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। और इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ट्रैवर्स बराबर क्लोज हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू सी दैट कि गेल्स ट्रैवर्स टेबल में पार्ट 1 और पार्ट 2 को भर के हम लोग हमारा ट्रैवर्स कंप्लीट कर सकते। और इस प्रकार का जो काम है ये हमको करना है माइनर प्रोजेक्ट में। माइनर प्रोजेक्ट दिस इज इन 3rd ईयर। तो एक बड़ा तालाब है, उसके बाहर में हमको खूब सारे पॉइंट्स लेना है और उसका फिर हमारा एक लंबा बड़ा ट्रैवर्स बनेगा। तो बड़ा ट्रैवर्स के लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम इतने सारे स्टेशन आ गए। फिर हर एक लाइन का एंगल, करेक्शन, करेक्टेड एंगल, फिर बेयरिंग, फिर लेंथ, फिर उसका लैटिट्यूड डिपार्चर, फिर लैटिट्यूड डिपार्चर का नॉर्थिंग साउथिंग का करेक्शन, और फिर करेक्टेड कोऑर्डिनेट, और फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ये हमको चाहिए फाइनली। तो आपका 3rd ईयर का जो माइनर प्रोजेक्ट है वो गेल्स ट्रैवर्स टेबल पे डिपेंडेंट है, और इसके हिसाब से आपको ये नॉर्थिंग साउथिंग के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालना है। ये निकालेंगे तो इससे आप आपका ट्रैवर्स प्लॉट कर सकते हैं, और फिर उससे आपका ड्राइंग जो भी है आपके डैम का या तालाब का या लेक का या जो भी एरिया का सर्वे कर रहे हैं आप, वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द गेल्स ट्रैवर्स टेबल। सो इन दैट वे वी कैन यूज दिस गेल्स ट्रैवर्स टेबल फॉर प्लॉटिंग। अब इसमें स्टेप्स क्या है एकदम समरी में देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो थियोडलाइट ट्रैवर्स में सबसे पहले तो हमको करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन निकालना है। तो आपके जो ऑब्जर्व बेयरिंग है ना, फील्ड में से ऑब्जर्व बेयरिंग जो है वो बेयरिंग आपके करेक्ट हो जाएंगे पहले। तो बेयरिंग के अंदर पहले लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन लगा लो तो आपके बेयरिंग करेक्ट हो जाएंगे। बेयरिंग करेक्ट होने के बाद में आपको इंक्लूड एंगल का करेक्शन लगाना है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आपके एंगल करेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपके पास में लेंथ भी है और इंक्लूड एंगल भी है और बेयरिंग भी है। तो डाटा हमको भरना पड़ेगा गेल्स ट्रैवर्स टेबल के पार्ट 1 में। उसमें फिर आप क्या निकालेंगे, लैटिट्यूड निकालेंगे, फिर डिपार्चर निकालेंगे। तो 3rd स्टेप है लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेशन। ये हो गया कि फिर कैलकुलेट द करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो यहाँ पे हमको ट्रांजिट रूल का अप्लाई करना है, तो लैटिट्यूड डिपार्चर का करेक्शन निकलेगा। फिर उससे करेक्टेड निकालेंगे लैटिट्यूड डिपार्चर, तो वो हो जाएंगे आपके कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। सो हियर यू विल गेट द कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। और फिर एक कॉमन ओरिजिन एज्यूम करके
independent coordinate निकलाएंगे, and that is the final output of the Gales-Travers table. So in that way we have to perform this operation for theodolite traversing, and that is the most important part of this survey. So here in this lection we have seen all this, and here we have completed our unit of theodolite traversing. So in the theodolite traversing, the latitude departure is the important part, and that we have completed. More problem we will solve in the forthcoming lecture. So thank you and goodbye for this unit number 5. In the next lecture we will start with the unit number 6, and there that is very interesting topic, that is called as plane table surveying. So till then, thank you and goodbye.